Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the last class of the progress as well as of the book, page number 219, and I think third paragraph, Mrs. Meldon role we will play. جب کوری کہتا ہے کہ یہ بم بنانا ناگزیر ہے اور ویسے ہی یہ سب باتیں کرتے ہیں تو مسز میلڈن اس سے پوچھتی ہے نو ون بٹ یو نوز دا سیکرٹ آف یور انوینشن ہینری صرف آپ اپنے انوینشن اپنے ایجاد کے راز سے باخبر ہے اور آپ کے علاوہ تو اور کوئی نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں، ایسا ہی ہے؟ تو کوری جواب دیتا ہے نو ناٹ دیٹ آئی ایم اویئر آف، دوسرے لوگ اس سے خبر نہیں ہے جس سے میں خبر ہوں، مطلب صرف مجھے پتہ ہے اور دوسرے لوگوں کو اس کی پتہ نہیں ہے۔ تو مسز میلڈن پھر اسے کہتی ہے کہ if you were to destroy your invention، اگر آپ اپنے اس انوینشن کو، اس ایجاد کو ختم کر لیں، تباہ کر لیں، never reveal its secret، اور اس کے راز کسی کو پاش نہ کر لیں، کسی کو اشکارا نہ کر لیں، ظاہر نہ کر لیں، thousands of boys like Eddies might have without fear of being destroyed۔ تو thousands of boys like Eddies، تو ایڈی کی طرح ہزاروں لڑکے might live without fear، شاید بغیر کسی خوف کے وہ زندگی گزار لیں، اب being destroyed، تباہ ہونے کے خوف کے بغیر وہ زندگی گزار لیں۔ تو کوری کے جواب دیتا ہے او آئی ڈونٹ نو، او میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ گزار لیں گے زندگی حفاظت کے ساتھ یا نہیں۔ اٹس فینٹاسٹک تھاٹ، یہ تو ایک زبردست خیال ہے، سوچ ہے، لاجواب سوچ ہے، بٹ دیئر از نتھنگ ان اٹ، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس سوچ میں۔ ادر پیپل ول انوینٹ تھنگ ایون ڈیڈلیئر دین مائی بم، دوسرے لوگ میرے بم سے بھی خطرناک چیزیں ایجاد کر لیں گے۔ مسز میلڈن بٹ ہینری if you were to suppress your invention، اگر آپ اپنے اس انوینشن کو خفیہ رکھ کے اس کو روک لیں، سپریس کر لیں، کوری سپریس اٹ، میں اسے سپریس کر لو، اس کو روک لو۔ مسز میلڈن یس if you were to destroy your formula، اگر آپ نے اپنے فارمولے کو تباہ کیا، and people were to know what you had done، اور لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے کون سا کام کیا، مطلب کتنا بڑا کام کیا، آپ نے انوینشن کو چھوڑ دیا انسانیت کو بچانے کی خاطر۔ perhaps you do a great deal to change people's heart، تو شاید آپ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے میں زیادہ کردار ادا کریں، زیادہ رول پلے کریں اور لوگوں کے دل میں بڑی جگہ آپ بنا لیں۔ تو کوری جواب دیتا ہے مائی ڈیئر شارلٹ، میرے پیارے شارلٹ، موسٹ سینسیبل پیپل وڈ تھنک، زیادہ تر حساس لوگ یہ سوچیں گے I'd gone off my head، کہ میں نے اپنے سر کو کاٹ لیا ہے، رائٹ، یا کہ میں نے اپنے آپ کو تباہ کیا گئی ہے، اپنے دماغ کو تباہ کر دیا اس کے بنانے میں، اور پھر میں نے اس کو اشکارا نہیں کیا۔ A few cranks and religious maniacs might praise me، چند ٹیڑے لوگ، کرینکس مین ٹیڑے لوگ، اینڈ ریلیجس مینکس، اور مذہبی دیوانے یا مذہبی جنونی لوگ جو ہیں، مائٹ پریز می، شاید وہ میرے تعریف کر لیں، بٹ دا ایوریج پرسن وڈ تھنک، لیکن اوسطاً لوگ سوچیں گے آئی واز اے فول، کہ میں ایک احمق ہو، beside being damned unpatriotic، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھ پر غیر محب وطن کا الزام بھی لگائیں گے۔ تو مسز میلڈن پھر کہتی ہے ہینری آئی بیگ یو ٹو ڈسٹرائے یور انوینشن، میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ اپنے اس انوینشن کو ختم کر لو۔ تو کوری جواب دیتا ہے یو وٹ، تم کون سے التجا کرتی ہو؟ تو مسز میلڈن انہیں کہتی ہے آئی بیگ یو ٹو ڈسٹرائے اٹ، میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ اس کو تباہ کر لو، ختم کر لو۔ لیٹ دیٹ بی یور میموریل ٹو ایڈی، اور یہ آپ کا یادگار ہوگا ایڈی کے لیے، کہ ایڈی کے خاطر آپ نے اپنے اس بم کو ختم کر دیا، ڈسٹرائی کر دیا، اس نظریے کو، بم بنانے کے نظریے کو۔ کوری
माई डियर शार्लेट, आई बिगिन टू बिलीव, अभी मैं ये यकीन शुरू करता हो, दैट ग्रीप हैज़ अनहिंग्ड योर माइंड, कि गम ने आपके जहन को मफलूज कर दिया है, गम ख़राब कर दिया है आपके जहन को। डिस्ट्रॉय माई इन्वेंशन, मैं अपने ईजाद को तबाह कर लो, ख़त्म कर लो। मिसेस मिल्टन, योर बम विल डिस्ट्रॉय लाइफ, आपकी बम सारे ज़िंदगी को तबाह करेगी। हेनरी, आई बेग ऑफ यू टू डिस्ट्रॉय इट, मैं आपसे इल्तिजा करती हो कि आप इसे ख़त्म कर लें। कोरी, रबिश वमन रबिश, राइट, फजूल औरतें हैं और फजूल बातें करते हो तुम। तो मिसेस मिल्टन, देन आई विल डिस्ट्रॉय इट फॉर यू, फिर मैं आपके लिए इसको ख़त्म कर लूँगा, तबाह कर लूँगा। शी गोज़ टू द टेबल, वो मेज़ के करीब जाती है। वेयर द रिटोर्ट्स आर, जहाँ पर ये तमाम औज़ार या सामान या आलात पड़े हुए हैं, अच्छी शीशे वग़ैरह, बर्तन वग़ैरह। एंड टर्न द टेबल ओवर, और वो टेबल को उल्टा कर देती हैं। सो दैट द रिटोर्ट्स आर स्मैश, ताकि ये सारे बर्तन और आलात टूट जाए। स्मैश मीन टूट जाए। कोरी, व्हाट्स द हेल आर यू डूइंग, ये तुम कौन सी फजूल काम कर रही हो, बुरी काम कर रही हो। तो मिसेस मेल्डन, आई एम डिस्ट्रॉइंग योर फाउल इन्वेंशन, मैं आपके बुरी ईजाद को ख़त्म कर रही हो, तबाह कर रही हो। तो कोरी, लाफिंग हार्शली, तेज़ी के साथ हंसते हुए, दैट वोंट डिस्ट्रॉय इट, इससे ये तबाह नहीं होगा मेरा इन्वेंशन। दैट वोंट डिस्ट्रॉय इट, आई गॉट इट ऑल इन माई हेड, ये सब कुछ मेरे दिमाग में मौजूद है। ऑल दैट यू हैव डन शार्लेट, आपने जो कुछ किया मेरी बहन शार्लेट, इट्स मेक अ मेस ऑफ माई फ्लोर, इससे मेरा जो घर था, ये फर्श था, ये फ्लोर था, ये उसने गंदा कर दिया। डेम्ड सेली, लानत हो तुम बेवकूफ़ों पर। आई कॉल इट, मैं इसको कहती हूँ कि तुमने ये बेवकूफ़ा का काम किया। So he stoops down and begin to clear off the mess, वो झुकता है, ही मतलब प्रोफेसर कोरी झुकता है, एंड बिगेन टू क्लियर अप द मेस, और इस बेतरतीबी को साफ करती है, गंदगी को साफ करना शुरू कर देती है। मिसेस मिल्टन, स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके साथ पीछे खड़े होते हुए, इट्स ऑल इन योर हेड, ये सब कुछ आपके दिमाग में है। कोरी, ऑफ कोर्स इट इज़, बेशक ये सब कुछ मेरे दिमाग में है। Anybody but a fool of women would have realized it, सिर्फ कोई भी, लेकिन सिर्फ एक अहमक औरत है ये महसूस करती है। that making a ये महसूस करती है कि ये मेरे जहन में नहीं है। that making a confounded mess like this, जो इस किस्म की नाखुशगवार, confounded मीन नाखुशगवार, गंदगी फैलाती है, गंदगी पैदा करती है, और ये सोचती है कि अगर मैंने ये तो टूट दिए तो सब कुछ ख़त्म हुआ। तो आपकी तरह अहमकाना औरतें ऐसे करती हैं। तो मिसेस मिल्टन, इट्स ऑल इन योर हेड, ये सब कुछ आपके जहन में है। कोरी, येस येस, डोंट कीप ऑन रिपीटिंग योर सेल्फ, बार बार ये बात मत दोहराओ। बट कम एंड हेल्प टू क्लियर अप दिस मेस, लेकिन आओ और इस गंदगी को साफ करने में मेरा मदद कर लो। यू हैव मेड, जो आपने बनाई है ये गंदगी। तो मिसेस मिल्टन जवाब देती है, हेनरी, वोंट यू डू व्हाट आई आस्क यू, क्या तुम वही कुछ नहीं करोगे जो मैं आपसे पूछती हो। तो कोरी जवाब देता है, डोंट बी अ फूल, बेवकूफ़ मत बनो। लुकिंग अराउंड, इर्द गिर्द देखते हुए, गिव मी दैट क्लॉथ ओवर देयर, मुझे वही कपड़ा दे दो जो वहाँ पड़ी हुई है। सो दैट आई कैन मूव ऑफ दिस स्टफ, ताकि मैं इस गंदगी को साफ कर लूँ। He continues to collect the pieces of the broken glasses etc. वो टूटे हुए शीशे वगैरह के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। While she goes toward the table, जब वो टेबल के पास जाती है, where the cloth is, जहाँ कपड़ा है, तो जब मिसेस मिल्टन उधर जाती हैं, when she reaches the table, जब वो इस टेबल के करीब पहुंचती हैं, she sees a long knife laying there, तो वो एक लंबी चाकू वहाँ पड़ा हुआ देखती है। एंड हॉप अनकॉन्शियसली, और नीम लाशऊरी हालत में, शी पिक्स इट अप एंड लुक्स, वो इसे उठाती है और इस चाकू की तरफ देखती है। कोरी इम्पेशेंटली, प्रोफेसर कोरी बेसब्री से उन्हें कहती है, हरी अप, जल्दी कर लो।
व्हाट्स ऑन अर्थ यू आर डूइंग, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे ये कपड़ा दे दो। तो मिसेस मिल्टन, आई एम लुकिंग एट समथिंग, दिस नाइफ, मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ, इस चाकू की तरफ मैं देख रही हूँ। तो प्रोफेसर कुरी उन्हें कहती हैं, वेल यू कैन लुक एट आफ्टरवर्ड, आप इसको बाद में देख लेंगे। फेच द क्लॉथ नाउ, ये कपड़ा अभी मेरे पास लाओ। हियर्स एडीज रेत अंडर द टेबल, यहाँ पर एडी का भी हार भी है इस टेबल के नीचे, आपने जो सब कुछ गिरा दिया तो एडी का वो हार भी आपने गिरा दिया। यू मेड मेस ऑफ इट टू, इसको भी आपने गंदा कर दिया। मिसेस मिल्टन, एडीज रेत, एडीज का हार। शी कम्स टुवर्ड हिम, वो उसके करीब आती है कुरी के करीब आती है। द नाइफ इज़ इन हर हैंड, और चाकू उसकी हाथ में है। कुरी, यस हाँ ये एडी का हार है। तो मिसेस मिल्टन, इफ़ यू वर टू गिव अप योर इन्वेंशन, अगर आप अपने ईजाद को तर्क कर दे हेनरी, आई वुडंट माइंड अबाउट द रेत, तो मैं इस हार के बारे में भी फिक्रमंद नहीं हो कि ये गंदा हो गया। योर ऑफरिंग वुड बी बेटर देन माइन, आपकी पेशकश मेरी पेशकश से बहुत ज़्यादा होगी अगर आप इसको तर्क कर लें। कोरी, वेल आई शॉन्ट, नहीं मैं तर्क नहीं करूँगा। गिव अप माई इन्वेंशन फॉर अ लॉट ऑफ डेम्ड सेंटिमेंट, क्या मैं तर्क कर लो अपने इस इन्वेंशन को, इस ईजाद को, फॉर अ लॉट ऑफ डेम्ड सेंटिमेंट, लानती जज्बात के खातिर। नॉट लाइकली, ये मुमकिन नहीं है कि मैं इसको तर्क कर लूँ। तो मिसेस मिल्टन कहती है, इट विल डिस्ट्रॉय लाइफ हेनरी, हेनरी इससे सारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कोरी, व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद इट, इसका इससे क्या ताल्लुक़ है, मतलब इस बात का आपसे क्या ताल्लुक़ है। गिव मी दैट क्लॉथ, मुझे वही कपड़ा दे दो। ही स्नैप्स इट आउट ऑफ हर हैंड, वो छीन लेता है इस कपड़े को, या वो झटक लेता है इस कपड़े को इसकी हाथ से, कोरी मिसेस मिल्टन की हाथ से। बट डज नॉट सी द नाइफ इन हर अदर हैंड, लेकिन उसकी दूसरे हाथ में वो चाकू नहीं देखती है। तो मिसेस मिल्टन, यू वोंट डिस्ट्रॉय इट हेनरी, हेनरी आप इसको ख़त्म नहीं करोगे इस फार्मूले को और इस बम के नज़रिए को। कोरी, ऑलमोस्ट एंसनेर, गुर्राते हो, नो मैं ये नहीं ख़त्म कर लूँगा। तो मिसेस मिल्टन, राइजिंग द नाइफ अबाव हिम, चाकू इसके ऊपर से उठाती है। देन आई, फिर मैं, और ये खाली जगह डॉट डॉट्स हैं, तो देन आई एंड ये बात कहते हुए, विद द क्वियर मोन ऑफ डिस्पियर, एक बहुत ज़्यादा नाउमीदी और मायूसी की आह के साथ, शी ड्राइव्स द नाइफ इनटू द हिज बैक, ओहो इस चाकू को इसके कमर में, इसके शाने में दाखिल करती है, घुमा देती है। ही स्वेज अ मोमेंट, वो एक लम्हे के लिए हिलता है। अटरिंग अ चोकिंग साउंड, और दम घुटने वाले आवाज़ें करते हैं। एंड देन क्लचिंग एट द ईयर, और फिर हाथ अपने हवा में हाथों को पिला लेते हैं। ही पिचेस फॉरवर्ड ऑन हिज पेस, और वो मुंह के गिर्द यानी चेहरे के आगे चेहरे के बिल गिर जाता है, मुंह के बिल गिर जाता है। शी स्टैंड अबाउ हिम, वो इसके ऊपर खड़ी होती है मिसेस मिल्टन, लुकिंग डाउन ऑन हिज बॉडी इन अ डेज्ड वे, और उसकी जिस्म को घबराहट की हालत में देखती है। डेज्ड मीन घबराहट। शी इज़ क्राइंग हेजिटेरिकली, वो पागलों की तरह चीखती है, रोती है। एंड सडनली शी स्टूप्स अप, और फिर अचानक वो झुक जाती है। एंड पेक्स द ब्रोकन रेत, और वो टूटा हुआ हार उठा लेता है। शी होल्ड इट टू हर ब्रेस्ट, वो इस हार को अपने सीने के साथ लगा लेती है। एंड स्टीयर डिस्ट्रैक्टेडली इन फ्रंट ऑफ हर, एंड स्टीयर और घूर के देखती है, डिस्ट्रैक्टेडली तजब्जुब की हालत में, दीवानों की हालत में, इन फ्रंट ऑफ हर अपने सामने देखती है जब कोरी मुर्दा पड़ा होता है उधर। मिसेस मिल्टन कहती है, एडी डियर आई हैड टू एडी, एडी मेरे प्यारे एडी, मुझे ये करना था। कर्टन, और फिर पर्दा छा जाती है, और इस तरह ये ड्रामा ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक डियर स्टूडेंट इसके क्वेश्चन की ताल्लुक़ है, तो मेरे ख़्याल में ज़्यादातर ड्रामे में ये इन दो कैरेक्टरों में से एक आता है, राइट।
something about the characters sketch of Professor Curie or Mrs. Milton. So you should try to learn these two characters, and we will also write the short question. But if we, but the main two questions are these two characters. And with this, we finished the level one, first year book. Try to share with all the friend. All the videos are there in a proper sequence in playlist with the name of first year English translation. So you should try to watch them regularly and try to improve your English and make your future a bright one. When your future is bright, the country will also progress, and in this way, we will go forward. Thank you so much. Khuda Hafiz. And don't forget to remember me in your prayer as well. After every prayer, you must remember me, because it's the right of the teacher upon the students to remember them in their prayer. So don't forget to remember me in your prayer. I shall be very much thankful to you for this if you remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz.